آپ نے پڑھا مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے غلام زیدن، کیا ہے یہ؟ زید کا غلام۔ تو آپ بتاؤ اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں تھی؟ چار۔ تمہارا بیٹا نہیں ابھی تو ادھر تھا۔ مرکب اضافی اور مرکب بنائی، مرکب منحصر، مرکب۔ تو مرکب غیر مفید کی چار قسمیں تھی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منحصر، مرکب توصیفی۔ آپ نے اب تک تین قسموں کو پڑھ لیا ہے، آج چوتھی قسم کو پڑھ رہے ہیں، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کہتے ہیں جو دو اسموں سے مل کر بنے۔ کس سے بھائی؟ دو اسموں سے، اور دوسرا اسم پہلے اسم کی حالت بیان کرے، دوسرا اسم پہلے اسم کی حالت یعنی اس کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ مثلا دیکھو یہ الرجل العالم، الرجل العالم، یہ دو اسموں سے مل کر بنا کہ نہیں بنا؟ ایک اسم الرجل، دوسرا اسم کیا ہے؟ العالم ہے، لیکن جو دوسرا اسم ہے وہ اپنے سے پہلے اسم کے کیا کر رہا ہے؟ حالت بیان کر رہا ہے، اس کی کیفیت اور اس کی اچھائی اور برائی بیان کرتا ہے۔ العالم نے یہاں پر الرجل کی حالت بیان کر دی کہ رجل سے مراد ایسا آدمی ہے جو کہ عالم ہے، جو کہ عالم ہے۔ افضل کہاں ہے؟ کیوں چھٹی؟ تو دوسرا اسم پہلے اسم کی حالت بیان کرے، یا پھر یہ ہے کہ دوسرا اسم اس کی حالت تو بیان نہ کرے موصوف کی، بلکہ وہ اس کی حالت بیان کرے جو موصوف سے متعلق ہے۔ کیا ہے؟ موصوف سے متعلق ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھو رجل، کیا ہے؟ رجل، رجل صالح، رجل اولادہ، کیا ترجمہ اس کا؟ ایسا آدمی جس کی اولاد نیک ہے، ایسا آدمی جس کی اولاد۔ تو یہاں پر جو صالح یہ صفت ہے، کیا ہے صالح؟ تو اس نے رجل کی حالت بیان کی ہے کہ اس کی حالت بیان کی ہے جو رجل سے متعلق ہے، جو رجل سے متعلق، رجل سے متعلق کون ہے بھائی؟ اولاد۔ تو صالح جو صفت ہے اس نے رجل کے متعلق اولاد کی حالت بیان کی ہے، نیک اولاد ہے نہ کہ مرد، نیک اولاد نہ کہ مرد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی موصوف کی حالت بیان کرتی ہے اور کبھی کبھی صفت کی حالت بیان کرتی ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ مرکب توصیفی کے اندر موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ مطابقت کا ہونا کن کن چیزوں میں؟ نمبر ایک رفع نصب جر، نمبر دو واحد تثنیہ جمع، نمبر تین معرفہ اور نکیرہ، نمبر چار مذکر اور مؤنث۔ یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی کیسی ہوگی؟ واحد۔ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی کیسی ہوگی؟ جمع۔ اگر موصوف جو ہے وہ حالت رفع میں ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ حالت رفع۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی کیسی ہوگی؟ مذکر۔ اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ جیسے آپ یہ دیکھو الرجل، الرجل، یہ اس کے اندر بتاؤ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ یہ معرفہ ہے نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ اور واحد ہے تثنیہ ہے؟ واحد ہے۔ اس پر حرکت رفع نصب جر میں سے کون سی ہے؟ رفع۔ تو اس کی صفت کیسی لائیں گے؟ جو اس کے مطابق ہوگی۔ العالم، کیا ہے؟ العالم۔ اب آپ یہ بتائیں کہ العالم الرجل ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مرکب توصیفی ہے۔ کیا ہے؟ مرکب توصیف اس کو کہا جاتا ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے۔ دو اسموں سے بنا کہ نہیں بنا؟ اور دوسرے سے پہلے اسم کی حالت بیان کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ لہذا یہ موصوف مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے
वो ऐसे करते हैं, पहले सिफत का तर्जमा बाद में मौसूफ का। तो इसका तर्जमा क्या होगा? रजुल आलिम का आलिम मर्द। और अल फस्लुल वासिउ, अल फस्लुल वासिउ क्या तर्जमा होगा? कुशादा दरसगाह, कुशादा दरसगाह। इसी तरीके से ये ले लो, अल मदरसा तो क्या है? अगर इसकी सिफत लानी हो तो कैसी लाएंगे? बोलो कैसी लाएंगे इसकी सिफत? वाहिद लाएंगे। और मुज़क्कर लाएंगे, मुअन्नस लाएंगे? मुअन्नस लाएंगे। मरफू लाएंगे कि मनसूब या मजरूर? रफा वाली, ठीक है। और मारिफा लाएंगे ना क्या लाएंगे? मारिफा। तो अब लाओ इसकी सिफत कोई। अल मदरसतुल जमीलतु क्या तर्जमा? क्या तर्जमा? खूबसूरत मदरसा, खूबसूरत। आई समझ में आ रही है ना? तर्जमा करते सीख गए और ये पहचानते सीख गए कि भाई कब सिफत को मारिफा लाना है, कब नकीरा लाना है। तो ये चीज तो हो गई, आप मुरक्कब तौसीफी को पहचान सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि मुरक्कब तौसीफी की तरकीब कैसे होगी? तरकीब कैसे होगी? ऐसे मतलब ये जुमला है, अर रजुलु अल आलिमु क्या तर्जमा? आलिम मर्द। क्या तर्जमा भाई? आलिम मर्द। तो तरकीब कैसे करते हैं? अर रजुलु मौसूफ और अल आलिमु सिफत। मौसूफ सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी हुआ, मुरक्कब तौसीफी। ये तो इसकी सिंपल सी तरकीब है, ठीक है भाई। लेकिन ये तरकीब सिर्फ उस वक्त होगी जबकि मौसूफ सिफत हो जुमले में, सिर्फ मौसूफ सिफत हो, उस वक्त तरकीब होती है। मौसूफ सिफत से मिलकर जुमला मुरक्कब तौसीफी हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वही वह जिस तरीके से मुरक्कब इजाफी है, मैंने ये बताया था, कभी कभी वो मारिफा कभी वो मुब्तदा बनता है, कभी खबर बनेगा, कभी फाइल बनेगा, कभी मफूल भी बनेगा। जैसे यहाँ इस मिसाल में देखो, दखला गुलामु ज़ैदिन, दखला गुलामु क्या तर्जमा इसका? ज़ैद का गुलाम दाखिल हुआ। तो इस मिसाल के अंदर जो मुरक्कब इजाफी गुलामु ज़ैद है, ये तरकीब में क्या बन रहा है? इधर फाइल क्या बन रहा है? फाइल। आई समझ में? मुजाफ मुजाफ इलैहि से मुरक्कब इजाफी होता है, लेकिन यहाँ चूंकि जरूरत किसकी है? इसको फाइल की, तो क्या बनेगा? फाइल। और यहाँ पर देखो, गुलामु ज़ैदिन आलिमुन क्या तर्जमा? ज़ैद का गुलाम आलिम है। यहाँ पर तरकीब में क्या बनेगा? गुलाम ज़ैद मुब्तदा क्या बनेगा? तो जिस तरीके से मुरक्कब इजाफी कभी मुब्तदा बनेगा, कभी खबर बनता है, कभी फाइल बनता है, कभी मफूल भी बनता है, इसी तरह सेम टू सेम, समझ रहे हो, हूबहू मुरक्कब तौसीफी भी मौसूफ सिफत से मिलकर कभी मुब्तदा बनेगा, कभी फाइल बनेगा, कभी खबर बनेगा, कभी मफूल भी बनेगा। इसके अलावा और कुछ बनते हैं, ठीक है। अब देखो इस मिसाल में, अर्रजुलुल आलिमु, अर्रजुलुल आलिमु ज़ैदुन क्या तर्जमा? आलिम मर्द, आलिम मर्द तर्जमा हो गया, आलिम मर्द ज़ैद है, आलिम मर्द, आलिम मर्द। अब तरकीब करो, अर्रजुलु है, अर्रजुलु मौसूफ, अल आलिमु मौसूफ सिफत से मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा। क्या बन रहा है भाई? मुब्तदा। और आज ज़ैदुन क्या बनेगा तरकीब में? खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। आई समझ में? तो इस मिसाल में मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बना है, मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बना है। और कभी ऐसा होता है मुरक्कब तौसीफी क्या बनता है? खबर। क्या बनता है? जैसे देखो, ज़ैदुन रजुलुन आलिमुन, रजुलुन आलिमुन ज़ैदुन क्या तर्जमा? ज़ैद आलिम मर्द है, ज़ैद। तरकीब करो, ज़ैदुन ज़ैद मुब्तदा, ज़ैद रजुलुन मौसूफ, आलिमुन, आलिमुन आलिमुन सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर भाई खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया।
आई समझ में? आ रही कुछ? ये तो और कभी फाइल बनता है, जैसे दखला रजुलुन आलिमुन, रजुलुन क्या तर्जमा? आलिम मर्द दाखिल। तरकीब करो, दखला फैल, रजुलुन मौसूफ, आलिमुन सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर दखला का फाइल, फैल फाइल से मिलकर जुमला फैलिया खबरी हो। तो आ रही है समझ में? समझ में आई बात? आ गई भाई? तो यहाँ पर मौसूफ वो इसमें जिसकी हालत बयान की जाए, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। जैसे कहा जाए खूबसूरत जैद, तो इसमें मौसूफ कौन है? कौन है भाई? जैद है ना? कौन है? जैद। और खूबसूरत क्या है? सिफत। कुशादा मदरसा, इसमें मौसूफ कौन है? इसलिए कि मदरसे की हालत बयान की जा रही है। मेहरबान उस्ताद, उस्ताद क्या है? मौसूफ है। और उस्ताद क्या है? मौसूफ है। अच्छा मर्द, इसमें मौसूफ कौन है? मर्द। आई समझ में? तो जिसकी हालत बयान की जाती है उसको मौसूफ बोलते हैं, और जो अपने से पहले इसमें उसके मुतालिक की हालत बयान की उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या भाई? सिफत। फायदा, मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का एक जुज मुस्नद या मुस्नद इलैहि होता है, पूरा जुमला नहीं होता। मुरक्कब गैर मुफीद आप समझ रहे हैं? मुरक्कब गैर मुफीद किसको कहा जाता है? जब कहने वाला कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को कोई खबर तरफ मालूम ना हो। मुरक्कब गैर मुफीद कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? मुरक्कब इज़ाफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मुनस्सब, मुरक्कब तौसीफी। ये जो चारों किस्में मुरक्कब गैर मुफीद की है, तो साहिब किताब इनके बारे में बतला रहे हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद जुमले का हमेशा एक जुज मुस्नद या मुस्नद इलैहि बनता है। क्या बनता है भाई? मुस्नद या मुस्नद इलैहि। पूरा जुमला नहीं बनता। जैसे गुलामु ज़ैदिन है, जैसे गुलामु ज़ैदिन है, ये सिर्फ एक जुज है, दो जुज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते गुलाम अलग जुज है, ज़ैद अलग जुज है, बल्कि पूरा मिलकर कितना जुज बन रहा है? सिर्फ ये एक। जैसे मसलन दखला गुलामु ज़ैदिन, दखला गुलामु ज़ैदिन, क्या तर्जमा? ज़ैद का गुलाम दाखिल हुआ। तो इसमें कौन कौन से जुज है? मुस्नद कौन है? दखला क्या है? मुस्नद। और गुलाम ज़ैदिन क्या है? मुस्नद इलैहि। तरकीब में अगर जुमला फैलिया हो तो उसमें मुस्नद को क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ये फेल हो गया। और मुस्नद इलैहि को क्या बनाते हैं? फाइल। ये क्या हो गया? फाइल। फेल फाइल से मिलकर जुमला फैलिया खबरिया हुआ। तो यही समझा रहे हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का एक जुज होता है, या तो मुस्नद इलैहि या मुस्नद। अगर जुमला इस्मिया है तो मुस्नद इलैहि को मुब्तदा बनाते हैं, और अगर जुमला फेलिया है तो मुस्नद इलैहि को फाइल बनाते हैं, मुस्नद इलैहि को फाइल बनाते हैं। आई समझे? पूरा जुमला नहीं होता। जैसे गुलामु ज़ैदिन काइमुन, गुलामु ज़ैदिन काइमुन, गुलामु ज़ैदिन काइमुन, क्या तर्जमा? ज़ैद का गुलाम खड़ा है। तरकीब कैसे होगी? गुलाम गुलाम मुजाफ, ज़ैद मुजाफ इलैहि, मुजाफ 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 इलैहि से मिलकर क्या बना भाई? मुब्तदा। और काइमुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया। तो समझ रहे हो? तो मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का कितना जुज होता है? एक। या तो मुस्नद इलैहि होगा या मुस्नद। अगर मुस्नद इलैहि है और जुमला इस्मिया है, तरकीब में मुब्तदा बनेगा, और अगर जुमला फेलिया है तरकीब में फाइल बनेगा, तरकीब में फाइल बनेगा। आगे, कोई जुमला दो कलीमों से कम नहीं होता, खा दोनों कलीमे लफ्जों में मौजूद हो। जो अब तबीब बारिउन, क्योंकि आपने पढ़ा मुरक्कब किसको कहा जाता है? जो दो कलीमों से मिलकर बने। मुरक्कब की कितनी किस्में? दो। कौन कौन सी? मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है भाई? जुमला। तो अब बताओ जुमला दो कलीमों से कम हो सकता है नहीं हो सकता? इसलिए कि मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला है, और मुरक्कब मुफीद कहा जाता है जो कहने वाला कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को कोई खबर तलब मालूम हो।
खबर ये तरफ मालूम उसी वक्त हो सकती है जबकि कम अज कम जुमले के अंदर 2 कलीमे हो। क्या हो गई? जैसे अत्तबीबु बारिउन, अत्तबीबु क्या तर्जमा? डॉक्टर माहिर है। तो इसमें कितने जुमले हैं? कितने कलीमे हैं? कौन कौन से? अत्तबीबु अलग है और बारिउ अलग है। 2 कलीमों से मिलकर बना। या ये कि एक कलीमा जाहिर में हो, लफ्जों में मौजूद हो, और एक कलीमा तकदीरन हो। तकदीर का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या मतलब तकदीरन का? लफ्जों से हज़फ लेकिन दिल में मौजूद हो। लफ्जों से हज़फ दिल में मौजूद। जैसे उनसुर, क्या तर्जुमा है इसका? तू मदद कर, तू मदद कर। तो इसमें अगर बज़ाहिर एक कलीमा नजर आ रहा है, बज़ाहिर उनसुर एक कलीमा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर दूसरा कलीमा मौजूद है। दूसरा क्या है? वो क्या है भाई? अंता। वो क्या है? अंता। अगर इसकी असल निकाली जाए तो क्या है? उनसुर अंता है, उनसुर अंता है। इसलिए कि वाहिद हाजिर के अंदर अंता ज़मीर पोशीदा होती है, अंता ज़मीर पोशीदा होती है। फायदा, कलाम का सही तर्जमा करने के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह का पहचानना जरूरी है। मुस्नद और मुस्नद इलैह को पहचानने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी है। आगे इस किताब के सबक के अंदर बता रहे हैं कि कलाम का सही तर्जमा करने के लिए कोई भी जुमला है, अगर हमें उसका सही तर्जमा करना है तो उसके लिए मुस्नद इलैह और मुस्नद का पहचानना जरूरी है। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन मुस्नद इलैह बन रहा है और कौन मुस्नद। इसलिए कि अगर जो हमें ये पता चल गया कि ये मसलन एक मिसाल लेते हैं, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस जुमले के अंदर कौन मुस्नद इलैह है, कौन मुस्नद है, तो इसका तर्जुमा हम आसानी से कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन मुस्नद इलैह है? ज़ैद। क्या है? ज़ैद क्या है भाई? मुस्नद इलैह। और क़ाइमुन क्या है? मुस्नद। क़ाइमुन क्या है? मुस्नद। क़ाइमुन मुस्नद है। और आपको पता है अगर जुमला इस्मिया हो, जुमला इस्मिया में पहले जिसको मुस्नद इलैह बोलते हैं, तरकीब में उसको क्या बनाते हैं? मुब्तदा। और जुमला इस्मिया का तर्जमा करने के बाद पहले तर्जमा किससे करने का? मुस्नद इलैह का। किससे करने का? मुस्नद इलैह का। अब आप तर्जमा कीजिए, ज़ैदुन क़ाइमुन का क्या तर्जमा होगा? ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है। तो जब आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि कौन मुस्नद इलैह है और कौन मुस्नद है, तो उसका आप तर्जमा आसानी से कर सकते हैं, आसानी से तर्जमा कर सकते हैं। और इसी तरह चूंकि पहले तर्जमा मुस्नद इलैह करने का, अगर जुमला फेलिया है जैसे दखला ज़ैदुन, क्या है? दखला ज़ैदुन, तो इसमें कौन मुस्नद है, कौन मुस्नद इलैह है? दखला क्या है? मुस्नद। दखला क्या है? और ज़ैद क्या है? मुस्नद इलैह। जब आपने ये पहचान लिया कि दखला के अंदर दखला मुस्नद है और ज़ैद क्या है? मुस्नद इलैह, और पहले तर्जुमा किसका करते हैं? मुस्नद इलैह का, तो क्या तर्जुमा होगा? ज़ैद दाखिल हुआ, ज़ैद आएगा समझ में। तो बहरहाल कलाम का सही तर्जुमा करने के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह का पहचानना जरूरी है। और मुस्नद और मुस्नद इलैह को पहचानने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी है। नंबर 1, इस्म, फ़ेल और हर्फ के दरमियान इम्तियाज। इस्म, फ़ेल और हर्फ के दरमियान इम्तियाज, यानी इस बात का इल्म होना चाहिए इस्म कौन है, हर्फ कौन है, फ़ेल कौन है। आप बताइए, ज़ैदुन इस्म फ़ेल हर्फ में से क्या है? क्या है भाई? इस्म है। दखला इस्म फ़ेल हर्फ में से क्या है? फ़ेल। मिन इस्म फ़ेल हर्फ में से क्या है? हर्फ। जब आप पहचान लेंगे इसमें से, इस्म फ़ेल हर्फ में से इस्म कौन है, फ़ेल कौन है, हर्फ कौन है, तो आप आसानी से जुमला बना सकते हैं और जुमले का तर्जुमा कर सकते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि जुमला इस्मिया में दोनों जुज़ इस्म होते हैं, दूसरा जुज़ कभी इस्म होता है कभी फ़ेल होता है। तरकीब में पहले जुज़ को मुब्तदा, उसका तर्जुमा पहले करते हैं। और जुमला फ़ेलिया में पहले जुज़ अगर से फ़ेल होता है लेकिन दूसरा जुज़ क्या होता है? इस्म होता है, तो तर्जुमा उसी का पहले करने का। बहरहाल तो कलाम का सही तर्जमा करने के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह का पहचानना जरूरी है। और मुस्नद और मुस्नद इलैह को पहचानने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी है। नंबर 1, इस्म फ़ेल हर्फ के दरमियान इम्तियाज। नंबर 2, मौरब मबनी का इल्म, यानी इस जुमले के अंदर कौन मौरब है, कौन मबनी है। और नंबर 3,
आमिल और मामूल के दरमियान पहचान, आमिल और मामूल की पहचान कि इसमें कौन आमिल बन रहा है, कौन मामूल। अभी आपका सबक हुआ नहीं है आमिल और मामूल का, इसी तरीके से मोर मबनी का सबक हुआ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब इसका सबक हो जाएगा तो आप खुद बखुद अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें कौन आमिल है, कौन मामूल है, कौन मोरब है, कौन मबनी है। क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया कि इस पे लहक़ तो पढ़ लिया, इसलिए आप इम्तियाज तो कर सकते हैं। बहरहाल आसानी से इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। आ गया सबक समझ में? आ गया सबक समझ में? तो इस सबक की जो तमरीन है वो आपको लिख कर लानी है। मुंदरजे जुमलों की तरकीब, मुरक्कब गैर मुफीद जुमले का कौन सा जुज़ वाक़े हो रहा है, उसकी वजाहत, मुरक्कब तौसीफी, मुस्नद और मुस्नद इलैहि की शनाख्त और वजह शनाख्त बयान करें। वजह एक जुमले में लिख कर दिखा रहा हूं, कैसे लिखने का देख। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन क्या तर्जमा? मोहम्मद अल्लाह का, ये तो होगा इसका तर्जमा। तरकीब क्या होगी? मोहम्मद मुब्तदा, रसूल, रसूल, रसूलुल्लाह क्या तर्जमा? अल्लाह का रसूल। तो क्या तरकीब में क्या बनेगा? रसूल मुजाफ, क्या बनेगा? अल्लाह मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ये तो हुई इसकी तरकीब, क्या हुई? तर्जमा और तरकीब। अब आगे आपको लिखना है आपको बताना इस जुमले के अंदर मुरक्कब गैर मुफीद कौन है। मुरक्कब गैर मुफीद कौन है भाई? मुरक्कब गैर मुफीद कौन है? रसूलुल्लाह है। कौन है? रसूलुल्लाह है। ऐसे हमने ये जुमले का कौन सा जुज बन रहा है? मुस्नद इलैहि या मुस्नद? क्या बन रहा है? दूसरा जुज क्या है? मुस्नद। क्या है भाई? मुस्नद इलैहि तो ये बन गया, तो ये क्या बचा? जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के पहले जुज को क्या बोलते हैं? दूसरे को क्या बोलते हैं? तो ये दूसरा मुस्नद है। नहीं, आपको सिर्फ मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में बताना है। किस बारे में बताना है? मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में बताना है कि ये दूसरा जुज मुस्नद है। क्या है? दूसरा जुज क्या है? मुस्नद है, और वो रसूलुल्लाह है। क्यों मुस्नद है? अब आपने जो पहले पढ़ा था कि मुस्नद इलैहि किसको कहा जाता है, मुस्नद किसको कहा जाता है, तो ये क्यों मुस्नद है? रसूलुल्लाह मुस्नद है ना। क्यों है? इसलिए कि इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जा रही है कि, और मोहम्मद क्या है? मुस्नद इलैहि। क्यों? इसलिए कि इसकी तरफ रसूलुल्लाह की निस्बत की जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह आपको इसमें से जुमले लिख के लाने हैं। मुझसे पूछ लेना कौन कौन जुमले लिख के लाना है। पहले तरकीब करने का, फिर इसमें बताना है कि मुरक्कब गैर मुफीद कौन सा है और जुमले का कौन सा जुज बन रहा है और इसमें कौन मुस्नद इलैहि और क्यों है और कौन मुस्नद है क्यों। ठीक है जी। इसलिए कि उसकी तरफ रसूलुल्लाह की निस्बत की जा रही है। ये जो है यहाँ जुमले में दो जुज होते हैं, एक तो मुस्नद इलैहि, एक मुस्नद। मुस्नद इलैहि वो इस्म है
जिसकी तरफ किसी इसम फ़ेल की इस्नाद की जाए, और मुस्नद वो इसम फ़ेल है जिसकी किसी इसम की तरफ इस्नाद की जा रही है। जब हमने इस जुमले के अंदर देखा कि मोहम्मद क्या है, मुस्नद इलैही है, तो मुस्नद इलैही के लिए जरूरी है कि उसकी तरफ किसी इसम की इस्नाद की जा रही हो। तो इसमें किसकी इस्नाद की जा रही है? इसकी तरफ रसूलुल्लाह की। किसकी की जा रही है? रसूलुल्लाह की। और रसूलुल्लाह क्या है? मुस्नद है। क्यों? इसलिए इसकी निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? मोहम्मद की तरफ। किसकी तरफ की जा रही है? मोहम्मद की तरफ। ठीक है भाई।